to the next important short note which is asked in your questions, that is social security. Social security मतलब क्या हुआ कि the society furnishes through appropriate organization against certain risk to which its members are exposed, right? So risk and social security covers in most countries are what? Your sickness, your invalidity, your maternity leave, your old age, or during your death. What security one will provide you? तो इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए यदि तुमने ध्यान दिया होगा, इन अवर ऑक्यूपेशनल चैप्टर हमने पढ़ा था ESIS एक्ट, देन फैमिली पेंशन स्कीम, सेंट्रल मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट होता है, और एक होता है वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट. ये इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए है. और जो नॉर्मल सिविल सर्वेंट्स रहते हैं, ठीक है, उनके लिए पेंशन स्कीम होती है, ग्रेट्यूटी होती है, PF होता है, एंड फैमिली पेंशन स्कीम्स होती है विच इज प्रोवाइडेड टू देम थ्रू आउट देयर लाइफ. फिर एक होता है सोशल सिक्योरिटी फॉर जनरल पब्लिक. अब जैसे जनरल पब्लिक है, ठीक है, किसी नौकरी में नहीं है, गवर्नमेंट नौकरी में नहीं है, चाहे स्टेट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो फिर वो लोग LIC करा सकते हैं और PPF करा सकते हैं. ठीक है, LIC मीन्स लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और PPF मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम्स. Coming to the next important thing, that is the art of interviewing. I think everybody should know the basic steps of what is the interview techniques and what are the basic steps. So starting with it, the interview is what? It is a device for investigation. Somebody is investigating you. Somebody is keeping an eye of how much knowledge you carry. Whenever you go for certain jobs or certain types of work, then you have to give your interview. That is, it is an art or it is a device of investigation. It is an instrument of research, right? Like the chemist carries out research in the test tubes, the bacteriologist uses what? Microscope in his laboratory. In the same way, the social scientist, they will use interview technique for his investigations. And modern medicine has changed its character. It has emerged social science in the recent years. Now there are various social and psychological factors which have come to be recognized as dominant factors in the natural history of disease, right? You have seen something like epidemiological transition also, right? कि पहले क्या था, कम्युनिकेबल डिजीज बहुत ज्यादा फैल रहे थे, ठीक है. अब क्या हुआ कि मैन बिजी हो गए, ठीक है, दे हैव hectic life schedule, they are not practicing exercise, they are not eating healthy food, फिर उनका irregular schedule, so all these are contributing to what? Non-communicable disease. ठीक है, पहले communicable disease थे, now NCD are common, that is epidemiological transition. तो ये last line जो मैंने अभी बोली कि various social and psychological factors have come into recognition as the dominant factors which contribute in the natural history of disease. अब इसका aim क्या है? Coming to the next slide, that is the aims of interview. क्या है इसका aim, क्यों कर रहे हैं interview? तो पहला तो है to secure information through face-to-face association and thereby gain the portrait to the entire personality broad enough to encompass the social and psychological background. दूसरा है एक hypothesis बना लेंगे कि भैया कौन आदमी कैसा है, ठीक है. फिर तीसरा है टू कलेक्ट द पर्सनल डेटा फॉर क्वांटिटेटिव पर्पस, और लास्ट क्या है टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम पर्सन्स हु आर सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. उनसे भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, अरे भैया फलाना कहाँ गया, कहाँ रह रहा है, यदि कुछ इंपॉर्टेंट चीज है तो पहला क्या था कि एक तो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं फेस टू फेस, दूसरा क्या था हाइपोथेसिस बनाने के लिए, तीसरा था कि पर्सनल डेटा क्वांटिटेटिव पर्पस के लिए ले रहे हैं, और चौथा क्या था कि पर्सन्स जो कि सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उनसे भी आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं. नाउ व्हाट आर दी काइंड्स ऑफ इंटरव्यू? बहुत से प्रकार के होते हैं, सुना भी होगा आपने. एक होता है डायरेक्ट या स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, एक होता है नॉन डायरेक्ट या अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है, एक होता है फोकस्ड इंटरव्यू, और एक होता है रिपीटेटिव इंटरव्यू. ठीक है, तो डायरेक्ट इंटरव्यू में क्या होता है, प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, ठीक है, और रिसर्चर को फिर सिर्फ उन्हीं के आंसर मिलते हैं. जैसे ऑप्शन दे दिए ABC, ये भी हो सकता है, ठीक है, तो एक प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ क्वेश्चन बना लिया और सिर्फ उन्हीं के आंसर मिल गए, तो वो हो गया डायरेक्ट या स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू. नॉन डायरेक्ट या अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होगा कि प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन नहीं बनाए जाते हैं, ठीक है, इसमें इंफॉर्मेशन मिलती है फ्री डिस्कशन के थ्रू, ठीक है, और सब्जेक्ट जो है उसको
अपना एक्सपीरियंस अपने शब्दों में बताने का पूरा हक मिलता है, दैट इज नॉन डायरेक्टिव या अनस्ट्रक्चर्ड। फिर होता है फोकस्ड इंटरव्यू। फोकस्ड इंटरव्यू मतलब क्या होता है, दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू इज जनरली यूज्ड टू स्टडी सोशल और साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या है मास कम्युनिकेशन के। जैसे एक आपको फिल्म दिखा दी, रेडियो में प्रोग्राम दिखा दिया, ठीक है, फिर उससे आपका इंटरव्यू हुआ और उससे आपका क्या रिएक्शन हुआ, तो दैट इज फोकस्ड इंटरव्यू, ठीक है। रिसर्चर ट्राइज टू फोकस अटेंशन on particular aspect of the problem and tries to know the experience, attitude and emotional responses regarding the concrete situation under the study. फिर एक लास्ट होता है रिपीटेटिव इंटरव्यू। इट इज यूज्ड व्हेन इट इज डिजायर्ड टू नोट द ग्रेजुअल इन्फ्लुएंस ऑफ सम psychological or social process. Record has also to be maintained to study the change in continued sequence, ठीक है। तो डायरेक्ट या स्ट्रक्चर्ड, नॉन डायरेक्ट अनस्ट्रक्चर्ड, फोकस्ड और रिपीटेटिव। अब टेक्निक ऑफ इंटरव्यू क्या है, जैसे तुमने इन्वेस्टिगेशन ऑफ एपिडेमिक यदि पढ़ा होगा तो उसमें 10 स्टेप्स होते हैं, ऐसी इंटरव्यू टेक्निक में भी 10 स्टेप्स होते हैं, 10 कॉमन स्टेप्स, ठीक है। तो सबसे पहले यू हैव टू स्टैब्लिश द कॉन्टैक्ट। पहले आप उससे कॉन्टैक्ट तो बनाएंगे, किससे, जिसका इंटरव्यू लेने वाले हैं, ठीक है, उससे। स्टैब्लिशमेंट, उसको क्या कहेंगे, जिसका इंटरव्यू ले रहे हैं, इंटरव्यू ही कहेंगे, ठीक है। तो इसमें मेन फोकस पॉइंट क्या है, स्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द इंटरव्यू, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट आया आपका स्टार्टिंग द इंटरव्यू, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसा नहीं कि अरे तुमको कब से बीमारी हुई है, क्या हुआ है, ऐसे नहीं स्टार्ट होता है। बिगिनिंग ऑफ द इंटरव्यू विद जनरल क्वेश्चंस, आपका नाम क्या है, ठीक है, कहाँ रहते हैं और परिवार में कौन कौन है, ठीक है। फिर पूछेंगे कि अच्छा इस बीमारी का कैसे पता लगा था, क्या, यू शुड बी पोलाइट, यू शुड स्टार्ट विद द जनरल डिस्कशन, ठीक है। ऐसे चिल्ला चोट करके और पहली बीमारी बता दी, अरे कोरोना हुआ था तुम्हारे घर में सबको, कैसे हुआ था, क्या हुआ था, तो वो पहले ही आदमी गिव अप कर देगा, ठीक है, नहीं बता पाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग द इंटरव्यू विद द जनरल डिस्कशन ऑफ द प्रॉब्लम। फिर थर्ड क्वेश्चन होता है सिक्योरिंग अ रैपोर्ट। आपको कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए इस वक्त तक क्या, कि इंटरव्यू के बीच और इंटरव्यूअर मतलब आप है तो आपके बीच या जो भी है उसके बीच एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप बन चुका है, ठीक है, एक आत्मविश्वास बन चुका है कि वो आपको पूरी चीजें कॉन्फिडेंशियलिटी वाली भी बताएगा और उसको आप पे पूरा विश्वास हो चुका है कि भैया आप उसकी बातें किसी को लीक नहीं करने वाले हैं, अपने तक रखने वाले हैं। तो दैट इज कॉल्ड सिक्योरिंग अ रैपोर्ट। फिर होता है रिकॉल। रिकॉल मतलब क्या हुआ, फोर्थ पॉइंट। कई बार क्या होता है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, जो इंटरव्यू ही रहता है, जो दे रहा है वो क्या करता है, जो टॉपिक चल रहा है वहां से डेविएट होके वो कहीं और कहानी बताने लगते हैं। तो आपको उनको फोकस करना है कि भैया लौट आओ, ठीक है, ये बात चल रही है, अब अपन थोड़ा इस पे बात कर ले, फिर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहना। तो दैट इज कॉल्ड रिकॉल। रिकॉल मतलब आपको रिकॉल नहीं करना है, जिसका इंटरव्यू ले रहे हैं यदि वो टॉपिक से डेविएट होता है तो उसको रिकॉल करवाना है, ठीक है। फिर होता है प्रोब क्वेश्चंस। प्रोब क्वेश्चंस मतलब क्या होता है कि द रिसर्चर हैज टू बी वेरी कॉन्शियस, ठीक है, कि इंटरव्यूई जो रहता है ना वो कई बार क्या है कि वही वाला पॉइंट है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कई बार भूल जाता है कि किनके आंसर्स देना है। तो आपको वो क्वेश्चन बार बार फिर बीच बीच में प्रोवोक करना है, घुमा फिरा के लेके आना है, ठीक है। तो दैट इज प्रोब क्वेश्चंस। फिर छठवां तो आपको सबको पता है कि उसको एनकरेजमेंट थ्रू आउट। आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए है, आप इन्वेस्टिगेटर हैं, ठीक है, तो आपको उसको एनकरेज करना है थ्रू आउट। एक भी बार आपने गुस्से से बोला, आपने चिल्लाया, पैर पटक के वो निकल जाएगा, कहेगा कि भैया मेरा क्या है इसमें, ठीक है। तो यू हैव टू बी पोलाइट, यू हैव टू एनकरेज द इंटरव्यू थ्रू आउट योर डिस्कशन। फिर एक होता है गाइडिंग द इंटरव्यू। फिर होता है 8th पॉइंट आपका रिकॉर्डिंग, क्लोजिंग द इंटरव्यू एंड मेकिंग द रिपोर्ट, ठीक है। तो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता चल गए होंगे कि स्टेप्स क्या होते हैं। सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, फिर होता है स्टार्टिंग ऑफ द इंटरव्यू, ठीक है, फिर होता है सिक्योरिंग द रैपोर्ट बना के चलना है, फिर होता है रिकॉल, फिर होता है आपका प्रोब द क्वेश्चंस, ठीक है, फिर होता है एनकरेजमेंट। एनकरेजमेंट के बाद में होता है गाइडिंग द इंटरव्यू, फिर होता है उसका रिकॉर्डिंग, ठीक है। रिकॉर्डिंग के बाद में आपको इंटरव्यू को क्लोज करना है, आपको थैंक्स गिविंग करना है कि उसको भी आप थैंकफुल बोलें, उसकी थोड़ी तारीफ करें। क्लोजिंग द इंटरव्यू, उसके बेसिक पॉइंट्स बता दें, और लास्ट में यू हैव टू फॉर्मुलेट द रिपोर्ट। जो भी है आपके मन में, सून आफ्टर द इंटरव्यू द रिपोर्ट विल बी कंपाइल्ड
when the mind is still fresh about the narration. ठीक है. सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बट इन योर लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर they have told certain social problems like your prostitutions, delinquency, your dowry system in your India and your dowry prohibition act जो आया था. फिर ड्रग एडिक्शन के बारे में आई थिंक इन मेंटल हेल्थ आई हैव ऑलरेडी कवर्ड. ठीक है. अल्कोहल अब्यूज, अनमैरिड मदर्स, योर हैंडीकैप चाइल्ड एक्सेट्रा. ठीक है. तो ये सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में if you have any query you can ask me, otherwise in short they are general problems, so you can read and you can write your experience. ठीक है. फिर अब social agencies क्या है, this I would like to tell you what are the social agencies in your country, right? तो इसके बारे में पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं. social welfare services have always been an integral part of the social cultural tradition of India soon after independence. On the basis of survey made by the Planning Commission, it was estimated that there were 10,000 voluntary organizations, right, in the field of social welfare, and today the number is likely to be much greater, right? 2-3 times it is increased. The activities, they were coordinated and they were assisted, right, by the Ministry of Social Welfare and Women Affairs. Now, I think an autonomous central social welfare board, right? It was the main agency of the ministry for undertaking and implementing various programs, ठीक है, for women through the voluntary sector. Now, what are the few principal agencies? We are going to see the list. One is the All India Women's Conference, 6 भगवान दास रोड न्यू दिल्ली में है ये. सेकेंड इज नेशनल एसोसिएशन ऑफ द रूरल वुमेन, रूम नंबर 9104 जामनगर, ठीक है, न्यू दिल्ली. नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन पटना. इंडिया सोशल इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन्स डेवलपमेंट बेंगलोर में है. फिर एक है सेंटर फॉर साइंस फॉर विलेजेस वर्धा में है ये. और एक है ईस्टर्न इंडियन वुमेन एसोसिएशन इन गुवाहाटी. आई डोंट रिमेंबर द एड्रेस ऑफ एवरीवेयर, ठीक है. आई एम जस्ट enumerating the places and the names. You can see in my slide that what are the details. They are taken from the park itself, right? Now I think coming to the last topic of this chapter, right, we are not going to deal in details, but I think you should know certain terminology related to it, right? So it is economics part, which is I think social science में हम सबने पढ़ा है 10th 11th तक, ठीक है. बट इधर हम शॉर्ट में टर्म्स देख लेंगे कि कम से कम आपको पता हो कि इस चैप्टर में क्या क्या टर्म्स यूज किए गए हैं. तो इकोनॉमिक मतलब क्या हुआ कि लिटरली मीन्स हाउसकीपिंग, दैट इज इकोनॉमिक्स. It deals with the human relationship in the specific context of production, distribution, consumption, ownership of resources, goods and the services. Economics and sociology overlap in many areas. ठीक है. अब आपको सबको पता होगा नेचुरल रिसोर्सेस है कंट्री के वेरियस, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, आपका फॉरेस्ट्री हो गया, आपका फिशरी हो गया, ठीक है, मिनरल्स हो गए, मैन पावर हो गया, एक्सेट्रा. ठीक है. अब कमिंग टू द ऑक्यूपेशंस, ठीक है. ऑक्यूपेशंस में हम देखेंगे कि बहुत सारे ऑक्यूपेशंस आते हैं, जैसे कि प्राइमरी सेक्टर में आता है आपका एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज, माइनिंग एंड क्वायरिंग. फिर सेकेंडरी सेक्टर की बात करेंगे तो आएगा मैन्युफैक्चरिंग वाले लोग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई, कंस्ट्रक्शन. टर्शरी सेक्टर की बात करेंगे तो आएगा होलसेल और रिटेल वाले, ठीक है, होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, ठीक है, एंड योर ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन. फिर आते हैं हम इंडस्ट्रियलाइजेशन में कि ड्यूरिंग द अर्ली इयर्स ऑफ दिस सेंचुरी मेजर इंडस्ट्रीज इन इंडिया कौन कौन सी थी. तो इसके नाम बस देख लो कि कॉटन, मिल इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, कोल एंड माइनिंग. और रिसेंट ईयर्स की हम बात करेंगे तो अब इंडस्ट्रीज का नंबर क्वाइट ऑफन बढ़ गया है. ठीक है. पहले देखा था कि 3-4 इंडस्ट्री गिनी चुनी चलती थी, लेकिन अब बहुत सारी हो गई हैं. तो उसमें ये सब इन्होंने बता दिया कि स्टील की हो गई, शुगर की हो गई, ठीक है, सीमेंट की हो गई, ग्लास हो गया, केमिकल, सोप, वनस्पति, हैवी इलेक्ट्रिकल मशीनरी, ठीक है, टूल्स एक्सेट्रा.
ठीक है। फिर अब हम आएंगे इकोनॉमिक लेवल्स पे, ठीक है। इसमें कौन कौन से शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो कि यहाँ वहाँ आपको पढ़ने में मिलते हैं, तो केवल हम इनको देख सकते हैं। एक होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो रहता है, ठीक है, इट इज अ इम्पोर्टेंट बैकग्राउंड इन्फ्लुएंस इन द साइज एंड स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी, ठीक है। दो चीजें होती है, एक होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, और एक होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। और these aggregates measure the total volume of national economic activity at current or constant price, ठीक है। और यदि हम by dividing the GNP और GDP by the किससे डिवाइड करना है, टोटल पॉपुलेशन, तो इससे क्या निकल के आएगा, वन विल अराइव एट द पर कैपिटा GNP और द GDP, ठीक है। फिर एक टर्म आता है जो कि है ग्रॉस नेशनल इनकम, ठीक है। ग्रॉस नेशनल इनकम हो गया, ठीक है। और ग्रॉस नेशनल इनकम जो रहता है ये कैसे जनरेट होता है, इट इज ग्रॉस नेशनल इनकम जनरेटेड फ्रॉम विद इन द कंट्री एंड ऑल्सो द नेट इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, तो ये हो गया ग्रॉस नेशनल इनकम। इट इज एक्सप्रेस्ड आइदर एट करंट प्राइस, दैट इज एट प्राइसेस प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द पीरियड टू विच द फिगर रिफर्स, और एट अ कांस्टेंट प्राइसेस, ठीक है। फिर हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब क्या हो गया, डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब ये हो गया कि व्हाट इज द इनकम जनरेटेड विद इन योर कंट्री, ठीक है। फिर होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट मतलब हो गया कि जो जीएनपी है, जीएनपी याद है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, उसमें से हम अपना कैपिटल को माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक मतलब जो जीडीपी था उसमें से हम माइनस कर देंगे द वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। फिर ये सब बहुत सारे टर्म्स है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट मार्केट प्राइस एक्सेट्रा। आई एम नॉट सो गुड एट दिस सोशल साइंस, ठीक है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू लीव इट। फिर एक होता है परचेसिंग पावर पैरिटी, ठीक है। ये थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिए कि इसकी डेफिनेशन क्या है। परचेसिंग पावर पैरिटी, दैट इज ट्रिपल पी। This I am telling you, I am just going to tell after this why I am telling you this. It is defined as the number of units of a country's currency required to buy the same amount of goods and services in the domestic market as $1 would buy in USA. समझ में आया कि कितनी करेंसी, ठीक है, आपके देश में लग रही है उस गुड्स और सर्विसेज को परचेस करने के लिए जितना कि यूएस में $1 में आएगा, ठीक है। तो ये होता है परचेसिंग पावर पैरिटी। अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा, इसका भी रीजन है, ठीक है। ट्रिपल पी आएगा शॉर्ट फॉर्म में, ये आ चुका है क्वेश्चन, तो परचेसिंग पावर पैरिटी लिख सकते हो या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी लिख सकते हो। ट्रिपल पी में जो तुमको आता है पीएसएम से रिलेटेड वो आप लिख सकते हैं, इसलिए ये बताया, ठीक है, जो जिसको याद रह जाए, ठीक है। फिर हम आते हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक फ्लो चार्ट है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है, इसका मतलब हमारे से इकोनॉमी से रिलेटेशन है इसका, कि हम अपने इकोनॉमिक लेवल को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन कंट्रोल होगा तो पॉवर्टी कंट्रोल होगी, और पॉवर्टी यदि कंट्रोल हो गई तो हमने जंग जीत लिया, हमारा इकोनॉमिक लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, और जो इतना पैसा सरकार खर्च कर रही है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा, ठीक है, और हम अपनी जंग लड़ लेंगे, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट भी आपकी किताब से ही लिया है मैंने, ठीक है। नाउ व्हाट डज दिस फ्लो चार्ट डिनोट, वी विल स्टडी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमें क्या क्या चीजें देखना है, 4 चीजें देखना है। पहले तो एक तो रिडक्शन ऑफ डिजीज एंड मोर्टेलिटी इन मैटरनल मोर्टेलिटी, HIV, एड्स, STI, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। फिर एक्सेस करना है टू फैमिली प्लानिंग, सेक्सुअल हेल्थ एंड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर इन द एडोलेसेंट एंड यंग पीपल, इस पे वॉच करना है, और एक जेंडर इक्वालिटी मेंटेन करना है। शायद मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में आपको पता होगा, ठीक है, कौन सा गोल है, गोल नंबर 1 या 2, ठीक है, ये तुम लोग ध्यान रखोगे, जेंडर इक्वालिटी, ठीक है। तो 4 चीजें देखा रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। अब डिजीज रिडक्शन के लिए क्या करना है हमको, डिजीज रिडक्शन यदि हो गया, ठीक है, हो गया तो क्या होगा, रिडक्शन होगा किसमें, डेली में, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। ये याद है, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स मतलब क्या है कि जो पर्सन डिजीज के साथ अपनी जिंदगी के कितने साल काटता है वो कहलाता है डेली डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, ठीक है। तो डिजीज कंट्रोल हुई तो डेली कम हो जाएगा,
डेली कम हो गया तो क्या होगा, आदमी लंबा समय रहेगा, हेल्दी रहेगा, लॉन्गर रहेगा, ठीक है। फिर हमने यदि फैमिली प्लानिंग को एक्सेस करना सीख लिया, ठीक है, तो क्या होगा, हमारी फर्टिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है, स्मॉल फैमिली बनने लगेंगी, उसमें क्या होगा, बच्चे अच्छे से पढ़ के निकलेंगे, ठीक है, और उनका जो डिपेंडेंसी रेशो रहेगा यूथ का, ठीक है, वो भी कम रहेगा, वो आप पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, जल्दी नौकरी लग जाएगी, अपना पैसा कमाएंगे, ठीक है। और लास्ट में क्या होगा कि यदि लोअर यूथ डिपेंडेंसी रेशो होगा तो फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ऑब्वियसली, ठीक है। अब एक और लास्ट क्या था, सेक्सुअल हेल्थ एंड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर इन एडोलेसेंट एंड यंग पीपल, और एक था जेंडर इक्वालिटी। ये दोनों से हमारे पास में मतलब इससे क्या होगा, प्रिवेंशन हमको करना है एसटीडी एचआईवी का, प्रिवेंशन करना है अर्ली प्रेगनेंसी का, तो लो पॉपुलेशन ग्रोथ होगा, तो उससे क्या होगा, लो मैटरनल एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी, और फिर आपको क्या है, लेस रिकोर्स टू अनसेफ एबॉर्शंस, ये सब भी कम होंगे, ठीक है। और बाकी के जो 3 डब्बे अब ऊपर बने हैं कि डेली कम हो गया तो लाइफ लॉन्ग ज्यादा हो गई, ठीक है, फर्टिलिटी कम हो गई, स्मॉल फैमिली हो गई, अच्छी फैमिली हो गई, ठीक है, और लास्ट वाला क्या था, प्रिवेंशन ऑफ एसटीडी एंड एचआईवी, इन तीनों से क्या होगा, पॉवर्टी रिडक्शन होगी। देखो आ गया नीचे, मैंने पहले नहीं देखा था, जेंडर इक्वालिटी वाले में आ गया एमडीजी, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, पॉवर्टी रिडक्शन पूरे लिख दिए इनने, जेंडर इक्वालिटी, रिडक्शन ऑफ चाइल्ड मोर्टेलिटी, इंप्रूवमेंट ऑफ मेथड हेल्थ, रिडक्शन ऑफ एचआईवी एड्स, ठीक है। और इसके आगे भी बता दूं, टू कॉम्बैट विथ मलेरिया एड्स एंड एचआईवी, फिर डेवलपमेंट ऑफ द ग्लोबल पार्टनरशिप, ठीक है, ये आते हैं 8 गोल्स, पता होना चाहिए। तो ये आ गया समझ में, एक बेसिक फ्लो चार्ट है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है कि कैसे हम लोग, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का रिलेशन बताया है पॉवर्टी के साथ, कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे यदि थोड़ा सा ध्यान दे लिया तो पॉवर्टी कम होगी, और पॉवर्टी कम होगी तो इकोनॉमिक हेल्थ का लेवल बढ़ जाएगा, सॉरी इकोनॉमिक लेवल बढ़ जाएगा, नॉट इकोनॉमिक हेल्थ, ठीक है। तो ऑब्वियसली अवर टारगेट विल बी कंप्लीटेड एंड देयर विल बी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ऑल दी थिंग्स इन अवर सोसाइटी, ठीक है। Now coming to the last part, that is your socio-economic status. It is an important part, ठीक है, ये आगे भी चल के आपको काम आएगा। Socio-economic status क्या होता है? It is defined as the position that an individual or the family occupies with reference to the prevailing average standards, ठीक है, of cultural and material possessions, your income and participation in the group activity of the community, ठीक है, जो भी आपका इनकम है, जो भी आपका कल्चरल पैटर्न है या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसके हिसाब से, ठीक है, आपकी क्या पोजीशन है, वो कहलाता है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है। ये कैसे डिटरमाइन होता है, इट इज डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन के हिसाब से, ऑक्यूपेशन के हिसाब से मेनली, और आपका इनकम लेवल के हिसाब से, ठीक है। अब इसके हिसाब से बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक स्केल्स आते हैं, ये वाइवा में पूछा जाता है, इसलिए ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी किताब में सिर्फ कुप्पू स्वामी दिया है, प्रसाद दिया है, और एक आध कोई और नाम दिया है, दैट्स व्हाई आई हैव कवर्ड फ्रॉम वेरियस प्लेसेस। कुप्पू स्वामी होता है, उदय पारिक्स मेथड होता है, प्रसाद स्केल होता है, रधुकर स्केल होता है, जलोटा होता है, कुलश्रेष्ठ स्केल, श्रीवास्तव स्केल एंड द भरद्वाज स्केल। अब मेन तुमको याद रखना है, कुप्पू स्वामी जो होता है वो होता है अर्बन एरिया के लिए, और प्रसाद वाला जो यूज करते हैं वो रूरल एरिया के लिए होता है, ठीक है। प्रसाद वाला जो रहता है उसमें हम लोग क्या लेते हैं, आपका सिर्फ इनकम लेते हैं, ठीक है, और कुप्पू स्वामी में एजुकेशन होगा, इनकम होगा और ऑक्यूपेशन होगा, ठीक है। थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। कुप्पू स्वामी मेथड टेक्स इनटू कंसिडरेशन, वही बताया तुमको, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, मंथली इनकम, ठीक है, सबका हम लोग वो करेंगे, स्कोरिंग करेंगे, फिर हम उसको जोड़ लेंगे और स्केल बना लेंगे, ठीक है। एजुकेशनल कंपोनेंट में देखिए, पहला जो ए पार्ट है एजुकेशनल कंपोनेंट, इसमें क्या क्या आता है, प्रोफेशन और ऑनर्स, ठीक है, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, फिर होता है आपका सॉरी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, तो 6 मिलेगा, इंटरमीडिएट और पोस्ट हाई स्कूल डिप्लोमा किया है तो 5, हाई स्कूल सर्टिफिकेट में 4, मिडिल स्कूल में आपका 3, प्राइमरी में 2 और इलिटरल है तो 1। तो ऐसे 1 to 7 हमने स्कोरिंग किया है एजुकेशनल कंपोनेंट का, ठीक है। फिर आ गए हम ऑक्यूपेशनल कंपोनेंट। ऑक्यूपेशनल कंपोनेंट में हम स्टार्ट करते हैं अनएम्प्लॉयड से। अनएम्प्लॉयड का स्कोर है 1, अनस्किल्ड 2, सेमी स्किल्ड 3, स्किल्ड वर्कर 4, क्लेरिकल या शॉप ओनर है
या फार्मर है तो 5, सेमी प्रोफेशनल बन गए हैं तो 6 और प्रोफेशनल है तो 10। ठीक है, अब फैमिली इनकम पर मंथ ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से इन्होंने 2015 का बताया है जहां से मैंने लिया है। ठीक है, ये आप हर साल के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इनकम यदि लेस देन 1932 है तो होगा स्कोर 1, 1933 रुपीज से लेके 5772 है तो स्कोर होगा 2, 5773 रुपीज से 9633 तक है तो आपका स्कोर कितना हो गया 3, फिर 9634 से लेके 14462 यदि है तो स्कोर होगा 4। ठीक है, अब स्कोर 5 नहीं होगा, ₹14,000 से 463 टू 19,290 यदि हो गया तो स्कोरिंग हो गया 6, और ₹19,291 से लेके 38,599 तक है तो स्कोरिंग हो गया 10, और यदि 38,600 के ऊपर है सैलरी, ठीक है, तो स्कोरिंग हो गया 12। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, पहले देख लो कि एबीसी में कौन कौन से स्कोर में आ रहे हो आप। ठीक है, और फिर तीनों को जोड़ दो, टोटल स्कोर क्या हो गया A+B+C, उससे निकल आएगी सोशल क्लास। ठीक है, तो स्कोर यदि 5 के नीचे आ रहा है तो क्या कहलाएंगे, लोअर क्लास। 5 से 10 के बीच स्कोर आ रहा है तो 4 हो गया अपर लोअर, 11 to 15 है तो थर्ड दैट इज लोअर मिडिल, 16 to 25 है तो सेकेंड दैट इज अपर मिडिल। ठीक है, और यदि 26 से 29 के बीच में स्कोर आ गया, ठीक है, तो दैट इज फर्स्ट क्लास, दैट इज अपर क्लास। ठीक है, ये हो गया। इसके लिमिटेशन क्या है, इसका लिमिटेशन ये हो गया कि ओवर एम्फेसिस ऑन इनकम रादर देन एजुकेशनल एंड ऑक्यूपेशनल फैक्टर, इट इज ओनली यूज्ड फॉर द अर्बन फैमिली। ठीक है, क्योंकि वहीं पे सब लोग ऑक्यूपेशन में रहते हैं और उस टाइप से। ठीक है, फिर उन्होंने एक पारिक स्केल बताया है रूरल एरिया के लिए। ठीक है, इट इज द मेथड टेक्स इनटू कंसिडरेशन, इसमें तो और बहुत सारी चीजें होती हैं, कास्ट हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया, एजुकेशन हो गया, फिर कितनी जमीन है, लैंड होल्डिंग, सोशल पार्टिसिपेशन, फैमिली साइज, हाउसिंग, फार्म पावर एंड मटेरियल पोजेशन। ठीक है, इसके एडवांटेज बस यही है कि इनकम कैन बी कंसील्ड and cannot be easy to determine. Scale is easy to use to determine the level of poverty. These criteria can be adopted to classify the family as below poverty line या above poverty line. जैसे इन्होंने देखो ये बताया है, शॉर्ट में मैंने लिया है components and their score। तो ये कास्ट के लिए हो गया। ठीक है, वेरियस कास्ट जो भी है आपका उसके अकॉर्डिंग स्कोर हो गया। फिर बी में आपका आ गया ऑक्यूपेशन, उसके अकॉर्डिंग स्कोर हो गया। सी में एजुकेशन के अकॉर्डिंग स्कोर है, डी में लैंड के अकॉर्डिंग है, ई में सोशल पार्टिसिपेशन, एफ में फैमिली मेंबर्स के अकॉर्डिंग, हाउस के अकॉर्डिंग, फार्म पावर के अकॉर्डिंग और मटेरियल पोजेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इससे आया सोशियो इकोनॉमिक क्लास। तो ये देख लो पारी के हिसाब से यदि लेस देन 13 है तो फिफ्थ, 13 to 23 4, 24 to 32 यदि स्कोर है तो 3, 33 से 42 तक है तो 2 और मोर देन 43 है तो 1। डिसएडवांटेज इसका भी क्या हो गया, ये रूरल में यूज करेंगे। ठीक है, कुप्पू स्वामी यूज कर रहे हैं अर्बन में, ये वाला यूज कर रहे हैं रूरल में। ठीक है, अब आ गए हम लोग प्रसाद स्केल में। प्रसाद स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डिटेल्स आप या तो बुक से पढ़ सकते हैं, ठीक है, या नेट से पढ़ सकते हैं, और नहीं समझ में आता है तो यू कैन ऑलवेज कमेंट एंड यू कैन आस्क मी। ठीक है, तो प्रसाद स्केल ये भी रूरल के लिए होता है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ फैमिली कैन ऑल्सो बी known by criteria proposed by BJ Prasad which includes per capita monthly income of the individual। इसको देख लो कैसे निकालते हैं, per capita monthly income is equal to total monthly income जो भी फैमिली की है divided by the total number of family members। ठीक है, और इसको इन्होंने क्या किया कि जो सोशियो इकोनॉमिक क्लास है पर कैपिटल मंथली इनकम ये दिया गया है। ठीक है, ये किताब में दिया है। फिर जो गाइडलाइंस हमने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से मदद लेके कैलकुलेट करी है वो 2015 का ये आया है। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक क्लास का लोअर लिमिट और अपर लिमिट। ठीक है, तो ये इसके अकॉर्डिंग आप सोशियो इकोनॉमिक क्लास डिसाइड कर सकते हैं। लिमिटेशंस इसका मेन ये है कि यूजिंग पर कैपिटा is that it does not actually measure the development as per capita income is a mean value, it does not reflect actual income distribution। ठीक है, अब एक चीज आ गई है आपकी
पॉवर्टी लाइन क्या होता है, ठीक है। तो इट इज एन इकोनॉमिक बेंचमार्क and poverty threshold used by the government of India to indicate economic disadvantage and to identify individual and households in the need of government assistance and aid। और according to the budget 2011-12 का ये बताया है कि रूरल अर्बन में क्या क्या चल रहा है। Okay, this was the end of the chapter. I know it was a bit boring chapter, but I have tried my best to bring up the important points to you. ठीक है, hope you like the lecture and please don't forget to solve the MCQs and check their answers. Thank you. Have a nice day.